Hello everyone, welcome to all in this video. In this video today we will read chapter 6 The Monkey and the Crocodile of supplementary book A Pact with the Sun. In this chapter there is a story from Panchatantra. Okay, so there are three phases in this story. Okay, so one by one we will read the uh, phase of the story. The summary of the first phase is a monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat, and sent some of his wife. They met regularly and talked. The monkey is in the tree and the crocodile on the ground. Okay, so this is the summary of the first phase. Now we will go in detail. Okay, now we will go through the detail of the first phase. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. Laden means covered. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. Content means satisfaction. Once on the river bank of a river, a monkey made a home for himself, and that tree was covered with fruits. He lived in that tree happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. Okay. The monkey was happy but lonely and wanted a companion. Companion means fellow, sathi, to talk to and share the fruits with. Okay. Monkey was happy there. Monkey was living on that tree happily, but he was alone. That's why his happiness was not complete. He wanted a companion, he wanted a fellow to talk to and share the fruits with himself. But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. As there was no one around him, not even another monkey. Okay, so one day a crocodile on the riverside appeared means came into sight. यानी कि एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ जो है वो मंकी को नजर आया. हेलो देयर सेट द मंकी. ओके, मंकी ने कहा हेलो, डू यू लिव इन दिस रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द crocodile politely. Politely means humbly. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. The crocodile humbly answered, good morning. I came here in search of food for myself and my wife. It is very nice to offer me fruit. Now, the monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Delicious means tasty. Thanks, he said. May I have some on my next visit? Then the monkey plucked some from the nearest branch. Monkey plucked some fruit from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them tasty and thanked him and said that in his next visit he want some more fruits. Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I am rather lonely here. Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Monkey ने कहा certainly, okay, of course, जो है ना, एज मैनी एज यू, जितना भी तुम चाहो तुम अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए ले सकते हो. डू कम अगेन, यू मस्ट कम अगेन, तुम दोबारा ज़रूर आना. आई एम रादर लोनली हियर, आई एम अलोन हियर. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली. रेगुलरली मीन्स कंटिन्यूसली. एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. होस्ट मीन्स इफ एनीबडी कम टू यू देन इट विल बी अ होस्ट. यानी कि अगर आपके घर कोई आता है तो आप क्या कहलाएंगे? होस्ट. होस्ट इज द अपोजिट ऑफ गेस्ट. तो द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच ही
होस्ट थ्रू डाउन, मंकी जो है उसके बाद क्रोकोडाइल जो है मंकी के पास उसके बाद कंटिन्यू आने लगा और जो होस्ट था, जो मंकी था, जो फल उनको भेज उसको नीचे गिराता था, फिर वो उसको खाता था. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और उसके बाद वो उनमें से कुछ फ्रूट्स को अपनी वाइफ के लिए ले जाता था. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. आफ्टर दैट द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम गुड फ्रेंड्स. दे टॉक्ड and were never tired of talking. They talked and they enjoyed their company. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops and lack of rain. Both monkey and the crocodile talked about the birds, animals, about the villages nearby, and the difficulties of the villagers that they face in raising good crops for lack of rain, because of lack of rain. Okay. यानी कि दोनों जो मंकी और क्रोकोडाइल थे वो बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, आसपास के जो गांव थे उनके बारे में, और जो गांव वालों की जो भी परेशानियां थी बारिश की कमी के कारण अच्छी फसल उगाने में जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते थे उन सभी के बारे में दे टॉक्ड टू ईच अदर. ओके. नाउ the summary of the second phase is the crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, annoyed means एंग्री, क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो उससे नाराज़ हो गई क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो घर लेट आया. शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी. उसे मंकी के साथ जो फ्रेंडशिप थी वो उसे पसंद नहीं आई, यानी कि वो उसकी मंकी के साथ क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप को पसंद नहीं करती थी. द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेज़. और जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उस वाइफ की जो विशेज़ थी, जो डिजायर्स थे, उनको इग्नोर नहीं कर सका. ओके. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज में आपने देखा कि there was a monkey who lived in a tree that was covered with fruits. He was living there happily, but his happiness was not complete because he was living alone and he wanted to share fruits with other monkeys or with his friends. One day a crocodile appeared in the riverside. After that the monkey and the crocodile became good friends. They talked and talked each other. They enjoyed talk to each other, and they talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. Okay. Now we are going to start the second phase of the story. Okay. So now we will go through in detail of the second phase of the story. One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था वो मतलब हमेशा से जो ज़्यादा देर तक मंकी के पास रुक गया. स्टेट मीन्स रुक गया. His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodile. Little crocodile में young ones that had just been hatched. His wife was annoyed. His wife became angry. Waiting and waiting, managing the little crocodile that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" जो मंकी जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो जो है ना एक दिन उसका काफ़ी देर तक वेट करते करते इरिटेट होगी. एनॉयड मीन्स इरिटेट हो जाना. ओके. इरिटेट हो गई, नाराज़ हो गई, और क्योंकि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे जो कि अभी हैच हुए थे उनको संभालते हुए परेशान हो गई थी. तो उसने उससे कहा कि हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ. वो तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है जिसके तुम इतने ज़्यादा तुम उसको पसंद करते हो. ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड. व्हेन क्रोकोडाइल्स वाइफ आस्क्ड हिम about his friend, and crocodile replied that he is a very nice monkey. He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. Okay. जो that monkey send fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? The crocodiles जो है crocodile जो है वो कहता है
अपनी वाइफ से कि यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब इट, तुम मुझसे ट्री पर क्लाइंब करने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हो, क्या तुम कर सकती हो? ये वही मेरा फ्रेंड है, वही मंकी है जो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है ना? दिस इज़ द मंकी हु सेंड फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे. A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm is taunt. Obvious means clear. A nice monkey, I'm sure, replied the wife. The wife of Crocodile, and Crocodile's wife answered in a tone of taunt. कि really I'm sure that he is a very nice monkey. If you ask me, this monkey should be my food. अगर तुम बताओ तो ये मंकी मेरा फूड हो सकता है. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. मैं उसका हार्ट खाना चाहती हूँ. वॉट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल. शाउटेड मीन्स क्राइड. द क्रोकोडाइल, आफ्टर हियरिंग हिज वाइफ्स डिज़ायर, द क्रोकोडाइल शाउटेड, वॉट अ फुलिश थिंग टू से, ये कैसी फुलिश बात तुम करती हो. आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट. मैं अपने फ्रेंड को, भले भी वो मंकी ही क्यों ना हो, ऑन किस तुम्हारे ओकेजनली जो चेंजेस हैं जो टेस्ट को, उसके लिए मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता. आई कांट किल अ फ्रेंड. ओके, तो ये बात जो है क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से कहता है. यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम. द वाइफ ऑर्डर्ड crocodile to bring that monkey to home. She said that she wanted to see him. So you can eat him, never declared her husband. Her husband means crocodile declared, okay, so you can eat him, but I cannot do it. मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता. But never I can do it. मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता. Now his wife was furious. Furious means एनवर्ड, नाराज हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Pester means bother, trouble. Dived took a dip. ठीक है, तो हिज वाइफ वॉज फिरोज, की जो वाइफ थी बिकेम वेरी एंग्री एंड शी टुक अ डिप इनटू हाइट हर सेल्फ, अपने आप को छुपाने के लिए उसने डुबकी लगा दी. एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी की गहराई में. लीविंग द लिटिल वंस, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर. टू पेस्टर देयर फादर, उनके अपने फादर को परेशान करने के लिए. यानी कि गुस्से में आके उसकी जो वाइफ थी उसने पानी की गहराई में अब छोटे छोटे बच्चों को, पिता अपने फादर को परेशान करने के लिए छोड़कर, वो जो है पानी के अंदर उसने अपने आप को डुबकी लगाकर छुपा लिया. His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. The crocodile was in a serious dilemma. Dilemma means a critical state. Okay, in a state of mind where anybody is not able to choose the right option or to do right decision. Okay, so that condition, that state of mind is called dilemma. So the crocodile was in a serious dilemma. जो क्रोकोडाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा की स्थिति में था. ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू. वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. उसके बाद उसने अपनी वाइफ की साइड में ही जाना का डिसीजन लिया. शी वॉज द लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, बिकॉज शी वॉज हिज life partner. I know it is a sin, it means vice, पाप. To betray a friend, betray means धोखा देना. Okay, I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. He said to himself that it is a sin to betray, किसी अपने दोस्त को जो है धोखा देना पाप है. But I have no choice, लेकिन मेरे पास कोई choice नहीं है. He said to himself, I'll invite the monkey home and hope for the best. And at last he decided that he will invite the monkey home. Okay. Now, my wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next time. So, when the crocodile visited the monkey next time, he said to him that his wife wanted him over for a meal. Okay.
तो यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। एंड जो मंकी क्रोकोडाइल था, उस जब वो अगली बार मंकी को मिला तो उसने कहा कि फ्रेंड, मेरी वाइफ जो है तुमको खाने पे बुलाना चाहती है, मेरी वाइफ ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, तो मेरे घर जो है तुम ज़रूर आना। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तो मेरे साथ आज तुम मेरे घर चलो। विथ प्लेजर सेड द मंकी, मंकी ने कहा ओके इट्स माई प्लेजर, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। मंकी सेड आई एम नो स्विमर, मैं एक तैराक नहीं हूँ, आई कांट स्विम बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सवारी कर सकता हूँ, बट आई कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। सेट आउट मीन्स उसके बाद वो दोनों जो थे वो चल दिए, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर, जहाँ पर द करंट, करंट मीन्स धारा, current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention, intention means इरादा, desire, wish, ओके। तो जब नदी के बीच में क्रोकोडाइल पहुँचे, वो दोनों पहुँचे, तो जहाँ पे जो पानी का जो बहाव था बहुत तेज़ था, तो क्रोकोडाइल अपने इंटेंशन को छुपाने से अपने आप को नहीं रोक पाया। ही कुड नॉट नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली मीन्स विथ शेम, बड़ा शर्माते हुए उसने बोला कि सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो टू अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी में अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई फादर, सॉरी माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स लाइफ, लिव अलाइव, मेरी वाइफ जो है वो जिंदा नहीं रह सकती विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारे हार्ट को खाए बिना। मेरी जो वाइफ है, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ तुम्हारे हार्ट को खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती। गुड बाय, ओके। नाउ this is the now we will go through the summary of the third phase. The monkey was thunderstruck. Thunderstruck means होता है shocked. He knew his wife was his life was in danger. He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. Okay, so in this phase of the story you will see that द मंकी जो है वो काफ़ी शॉक रह गया जब उसने क्रोकोडाइल को सुना, तो वो काफ़ी शॉक रह गया। और उसके बाद ही केम टू नो दैट हिज लाइफ वाज इन डेंजर बट ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल। उसने जो है क्रोकोडाइल को जो है ना वापस जो है ट्री की तरफ स्विम करने के लिए उकसाया। परसुएडेड मीन्स उकसाया, ओके। प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक, उकसाया। और उसके बाद ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, ओके। नाउ वी विल सी, नाउ वी विल गो थ्रू द डिटेल ऑफ द थर्ड फेज ऑफ द स्टोरी। दिस इज द थर्ड फेज एंड द लास्ट फेज ऑफ द स्टोरी, ओके। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो मंकी जो था वो डर गया। स्केयर्ड मीन्स डर गया, ओके, फ्राइटेंड, एंड डिस्ट्रेस्ड मीन्स सैड एंड फुल ऑफ सोरो। जो मंकी था वो डर गया और उसका जो दिल था वो एकदम दुख से भर गया। बट ही वॉज सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स वाइफ, एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, क्लेवर मीन्स कनिंग, बट ही वॉज वाइज एंड कनिंग लाइक ऑल मंकीज। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना जो माइंड था, दिमाग था, वो ठंडा रखा। कामली ही सैड, शांति से उसने कहा, शांत मन से, आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, आई हैड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे केवल ओनली एक ही फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, आखिरकार कैसे किसी मंकी के हार्ट को क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ से कंपेयर किया जा सकता है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने फुलिश कैसे हो सकते हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। आई हैड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं जो है अपने साथ अपने हार्ट को लेकर आता अगर तुम मुझे बताते तो बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मीन्स विद प्योर हार्ट। तो क्रोकोडाइल ने कहा, एकदम भोलेपन से पूछा, आज तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली, क्रोकोडाइल ने भले ही भोलेपन से, बड़े ही भोलेपन से, विद प्योर हार्ट, तो क्रोकोडाइल आस्क्ड, बट वेयर इज़ योर हार्ट, कि तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे
लगता था कि तुम इसे हमेशा अपने साथ ही रखते हो. Of course not, it's there on the tree. ऑफ कोर्स मीन्स बिल्कुल ऐसा नहीं है. इट्स देयर ऑन द ट्री, वो पेड़ पर है. लेट्स स्विम बैक एट वंस, एक बार फिर वापस जो है वो तैरते हैं. एंड गेट इट, और उसे लेकर आते हैं. लेट्स स्विम बैक यानी कि वापस जो है हम तैर कर वहाँ जाते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी जो वाइफ है वो वेट कर रही होगी. रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. व्हेन मंकी रियलाइज दैट जो क्रोकोडाइल है वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, देन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया. ठीक है. तो आफ्टर गेनिंग द जो कॉन्फिडेंस, जब उसे लगा कि जो क्रोकोडाइल उसकी बात पे विश्वास कर रहा है, तो मंकी का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने आगे बढ़कर जो है ना ये बोला कि आप, तुम्हारी वाइफ जो है वो इंतज़ार कर रही होगी, क्यों ना हम वापस चल के उस तैर के उस पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ से हम जो है हार्ट को लेकर आते हैं. तो ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री. लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट. योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. ओके. नाउ, oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. Hissed means the voice of the crocodile. Okay. तो क्रोकोडाइल ने कहा कि ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, तो बहुत बड़ी गलती है. दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री. उसके बाद वो दोनों तेज से हंसने लगे और क्रोकोडाइल जो है ना ट्री की तरफ पहुंचने के लिए जो है फुल टर्न ले लिया. ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री. जब रिवर बैंक पे पहुंचे तो मंकी कूद पर पेड़ पर चढ़ गया. एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ. रिलीफ मीन्स जो है उसे बिल्कुल जो उसने चैन की सांस ली. ठीक है. जब वो पेड़ पे जाके चढ़ गया और उसने चैन की सांस ली. हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, उसने आराम की चैन की सांस ली. ही प्लक्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच. उसने पास की ही ब्रांच से, शाखाओं से एक या दो फल तोड़े. एंड थ्रोइंग देम डाउन, और उसको नीचे फेंकते हुए सेड, बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट. तुम अपनी वाइफ को ये फ्रूट दो जाके, ना कि मेरे हार्ट को, यानी कि मेरी हार्ट की जगह पर तुम जो है इन फ्रूट्स को अपनी वाइफ को दो जाके. फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. जो फ्रेश फ्रूट्स हैं दे आर वेरी गुड फॉर माइंड एंड बॉडी. गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन. वो कहते हैं, मंकी सेड दैट गुड बाय फ्रेंड, फ्रेंड गुड बाय. अब दिस इज द नाउ वी वॉन्ट मीट अगेन. अब जो है हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे. द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्यून. जेन्यून मीन्स ट्रू. जेन्यून मीन्स ट्रू. एंड टर्न बैक टू गो होम. उसके बाद द क्रोकोडाइल सैडर, क्रोकोडाइल बिकेम सैड एंड वाइजली जो है ना ही शेड टीयर्स. ओके. वैसे तो कहा जाता है कि जो क्रोकोडाइल के जो टीयर्स होते हैं दैट आर नॉट जेन्यून, दैट आर नॉट ट्रू, दैट आर नॉट रियल. वो रियल नहीं होते हैं, सच नहीं होते हैं. लेकिन आज क्रोकोडाइल ने जो सचमुच जो है ना ही शेड फ्यू टीयर्स विच वर जेन्यून, जो कि सचमुच जो एकदम रियल थे, सच्चे थे. एंड टर्न बैक टू गो होम, और उसके बाद वो रोते हुए जो है अपने घर को वापस चला गया. ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू. वो एक या दो बातें अपनी वाइफ को बताने के लिए, कहने के लिए बहुत जल्दबाजी में था. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, हु वाज द कलेक्शन ऑफ some folk stories. Okay, and the moral of the story is that nobody should betray his or her friend. ओके. कभी भी किसी को अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए. एंड नो वन शुड ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन एनी वन. और किसी पर भी अंधविश्वास करके उस पर विश्वास नहीं करना, ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. सो किसी अपने मित्र को, कि दोस्त को धोखा देना एक तरीके का पाप है. इट इज़ अ सिन टू बैटर अ फ्रेंड. ओके. So dear students, I think that I hope that you have understood the chapter. Okay, see you later. Thank you so much.